Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. How are you all? I hope you all are healthy and happy at home, and Alhamdulillah for our health. So my dear students, welcome to my VED class. What is the full form of VED? Value education. Okay, value education, or you can say Diniyat. So my dear students, in previous video we discussed about Hifzul Hadith, right? And what is the definition of Hifzul Hadith? Whatever Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said or did is known as Hadith, and memorizing the Hadith is called Hifzul Hadith. And before this, I tell you one of the Hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, that Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the person who learns 40 ahadith to benefit the ummah will be told on the day of judgment, to enter Jannah from whichever door he please. Means Prophet sallallahu alaihi wasallam said that जो इंसान 40 अहादीस बाय हार्ट करता है, मेमोराइज़ करता है, सिर्फ़ और सिर्फ किस चीज़ के लिए, ताकि वो खुद अपने अंदर दीन को उतारे और उम्मह को यानी दूसरे लोगों तक उसको सही तरीके से पहुंचाए, तो क़यामत के दिन वो जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकता है। कितनी बड़ी फजीलत है इस चीज़ की। और अहादीस तो देखो एकदम छोटी छोटी है, पूरा एक बड़ा सा सेंटेंस भी नहीं है। So we can do it easily this thing. Okay, you also do na, inshallah. Okay, so my dear students, in previous video we discussed about last year, it means revision of last year, right? हमने जो पहले पढ़ ली थी उन्हीं अहादीस को हमने लास्ट ईयर वाले पहले लेसन के अंदर वो लास्ट ईयर का रिवीजन हमने पढ़ा था, राइट? सो अब जो है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ द लेसन फॉर दिस ईयर, यू कैन रीड, राइट? सो लेसन नंबर 2, हदीस नंबर 11. वाई दे आर गिविंग अस नंबर 11? बिकॉज बिफोर दिस 5 ahadith from 5 section we discuss. Okay, one of the section, each section have a 2 ahadith, right? So which one is that 5 sections? I remind you one more time. Imaniyat means faith, ibadat means act of worship, muamalat means business dealing, muashrat means your social life, and akhlaqiyat means our good character, right? So in each section we learn 2 ahadith. So now this is the lesson for this year. So we discuss about 5 sections, 5 ahadith today. So shall we go now? See in your screen, you can see the lesson for this year, lesson number 2, hadith number 11 on imaniyat. Iza sa'alta fas'alillah. Iza sa'alta fas'alillah. Translation: when you need to ask from Allah, say. See, very big thing Prophet sallallahu alaihi wasallam said us, that whenever you ask something from someone, that in any place they are showing you that I help you this time, I give you a money this time, but Allah is one and only is there. He is giving you each and everything without asking also. कभी कभी ऐसा होता है आपने मांगा भी नहीं होता है और आपके हक़ में बेहतर है, अल्लाह ताला खुद ही आपको अता कर देता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात सिर्फ़ ऐसी है जो कभी किसी भी चीज़ का आपको टोंट नहीं करेंगे या सुनाया नहीं जाएगा आपको। तो सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ किससे मांगना है? अल्लाह की ज़ात से मांगना है। सबसे बेस्ट थिंग ये है। देखो, ऑन द स्पॉट अगर वो चीज़ आप नहीं पाते हो, नहीं मिलती है आपको वो चीज़, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह आपको ज़रूर देने वाला है। लेकिन अगर आपके हक़ में बेहतर नहीं है तो अल्लाह उसकी जगह पर जो आपके हक़ में बेहतरीन चीज़ होगी, अल्लाह वो आपको अता करेगा। सिर्फ हमारे दिल में इस चीज़ का यकीन होना चाहिए, राइट? सो दिस हदीस ऑन इमानियात, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह,
When you need to ask from Allah Ta'ala. Now hadith number 12 on ibadat. Afzalul a'mali indallahi as-salatu fi awwali waqtiha. Afzalul a'mali indallahi as-salatu fi awwali waqtiha. Means the best of deed in the sight Allah is to perform salah at its earliest time. क्या कहना चाहते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग, देखो हम अगर फीमेल है तो हम घर में नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे लिए भी ये चीज़ है, लेकिन जो लोग मस्जिद में पढ़ते हैं यानी मेल, तो जितना जल्दी हो सके मस्जिद में जाया जाए और जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाए। फ़ीमेल के लिए भी क्या है कि ज़ोहर का टाइम, चलो ज़ोहर को 1 या 1:15, पौना 1 से 1:15 के दरमियान सारी अज़ानें होती है, राइट। फिर हम अभी ये काम है, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, कर कर हम वो नमाज़ को 3:30 बजा रहे, 4 बजा रहे, वो सही नहीं है। जितना जल्दी हो सके उसके अव्वल वक्त में नमाज को अदा किया जाए, यही सबसे बेहतर आमाल है अल्लाह के नज़दीक। ओके, सो दिस हदीस ऑन अफजलुल आमाली इंदल्लाहि अस्सलातु फी अव्वली वक्तिहा, यानी नमाज का उसके जितना जल्दी हो सके अव्वल वक्त में पढ़ लेना। ओके, नाउ हदीस नंबर 3 ऑन मुआमलात। तूबा लिमन ताब कसबुहु, गुडनेस इज़ फॉर ही हुज अर्निंग इज़ हलाल। बेहतरीन है उस इंसान के लिए जो हलाल कमाता हो, राइट। देखो बच्चों, कम खाना, थोड़ा खाना, लेकिन सही और हलाल खाना। जितनी हलाल रोज़ी हमारे जिस्म के अंदर जाएगी या हम जितनी हलाल रोज़ी से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे, उतना ज़्यादा दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में हमें जवाब भी कम देना पड़ेगा, राइट। ऑब्वियस थिंग है, जो चीज़ हमारे लिए हराम है उस तरीके से अर्न करना, कमाना और फिर उसको अपनी ज़ात पर या अपने फैमिली पर खर्च करना, दैट इज़ नॉट गुड। So tuba liman taba kasbuhu, goodness is for the whole whose earning is halal. Now see another page, hadith number 14 on muashrat. Muashrat means, yes, muashrat means your social life. Iza dakhaltum baytan fasallimu ala ahlihi. When you enter a house, greet its people with salam. See, one of the hadiths you learn in this section, na? As-salamu qabla al-kalam means say salam before talking. Prophet sallallahu alaihi wasallam said us again and again this thing, that is your manners when you enter at the home. So first of all greet with the salam. देखो, सलाम का ट्रांसलेशन आपने बहुत मर्तबा पढ़ा है, आप पर अल्लाह की सलामती हो, राइट। कितनी बेहतरीन दुआ है, हमको शायद कितने लोगों को इसका मीनिंग भी नहीं पता होगा। एज अ मुस्लिम हम पहले से अस्सलामु अलैकुम एंड वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं, बट दिस इज़ ऑल्सो अ सुन्ना वे ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो वेन एवर वी एंटर अ हाउस, ग्रीट इट्स पीपल विद द सलाम। हमें सलाम कर कर दाखिल होना चाहिए, तो उन लोगों को भी इस चीज़ का बेनिफिट और हमें भी। हदीस नंबर 15 ऑन अखलाकियात मीन्स आर गुड कैरेक्टर। ला यदखुलुल जन्नत नम्मामुन, द टेलटोल विल नॉट एंटर जन्ना। क्या मीनिंग है इसका? चुगलखोर, राइट, किसी की चुगली करना, वैसा इंसान कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा, राइट। देखो बेटा, होता है बहुत, हम ह्यूमंस हैं, हमको किसी से कभी कुछ बुरा लगता है, किसी की बात बुरी लगती है, किसी से ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके हक़ में बुरा बोलने लगे दूसरों के सामने जाकर, या दूसरों के सामने उनकी बुराइयां बयान करें। या जब अच्छे ताल्लुकात थे और आपके साथ उन्होंने कोई चीज़ शेयर की है, कुछ बात शेयर की है, कुछ अपने ख़यालात शेयर किए और फिर उसको दूसरों के सामने गलत तरीके से पेश करना, ये सबसे गलत चीज़ है, राइट। सो जितना ज़्यादा हो सके माफ़ करने वाले बनो। जितना ज़्यादा माफ़ कर पाओगे, अल्लाह ताला उतने ही आपके दर्जात को बुलंद रखेगा।
अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि अगर माफ़ करने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाती है, यानी सामने वाला ये सोचता है कि देखा इसको मेरी ज़रूरत थी इसलिए ये झुक गया, राइट, तो कोई बात नहीं, आप क़यामत के दिन वो मुझसे ले सकते हो, आपकी इज़्ज़त मैं आपको वापस दूंगा। अब इससे बड़ा क्या वादा चाहिए हमें, राइट। सो जितना हो सके अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, जितना हो सके दिल में किसी का कीना बुग्स मत रखिए। सबसे बेहतरीन ज़िंदगी हम इसी तरह गुजार सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दीनियात और नमाज, कुरान, हदीस, you can ask me in our live classes. Inshallah, I will explain you. Okay, till then, stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.